हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So welcome everyone for today's facilitated class. So today we are very fortunate. Ah, so today we have with us His Grace Adi Gopinamai Prabhuji. Hari Bol. So today I will request to Ansuman Prabhu to introduce Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanavad Pranam, Prabhuji. So, Prabhuji has done his BTech in nanotechnology from AINT Noida. Major thesis was interaction of CNT with biomolecules, DNA, computer simulation, collaboration with Russian government from NIT Patna. Worked with VBS in Google Gurugram, and Prabhuji has joined ISKCON in 2013, then joined BASE in 2014 to 2018. Then served in IYF Noida, Gurugram, and Delhi. Then joined full-time devotee in 2018. So Prabhuji has conducted youth seminars in colleges like WIT, DP, GITM, and LPU Jalandhar. Currently, Prabhuji is doing youth preaching and serving youth forum Delhi as facilitator under guidance of His Grace Sundar Gopal Prabhuji. So we can introduce Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Back to you, Prabhuji. Prabhuji, for giving an opportunity. I am not worthy of this, and so many senior devotees are very expert in these things. But it's just your mercy that I am able to do this service. And so I welcome you all, the facilitators, and I feel very fortunate to serve here. And so I hope you have been doing a lot of classes and you will be preaching a lot of things. बहुत सारे लोगों से आप interact करते होंगे और कई सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और already like IIYC के कई सारे seminars हर जगह हो रहे हैं. So हम आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हर किसी के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और हमें उस पे like it's the foundation like but somewhere we find some challenges, right? So we shall start with a Vaishnav song so that we can concentrate on our Acharya's instructions वाणी and we'll find something in that और उसको apply करने का प्रयास करेंगे. Yes. So, are you all ready? All the devotees? Yes? No? Yes, Prabhuji. Okay. I hope you will be able to see. Yeah. So, I'll just sing. You may hear because इतना अच्छे से online कीर्तन नहीं हो पाता. Right. भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरनार वृंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुए भव सिंधु रे तरहुए भव सिंधु रे शीत आतप बात बरिसन ए दिन यामिनी जागी रे विफले से बिनु कृपन दुजन विफले से बिनु कृपन दुजन चपल सुख लाभ लागी रे
चपल सुख लाभ लागी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आछे पर तीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजु हरि पद नीति रे। भजु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास भी लाश रे। गोविंद दास भी लाश रे। भजुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हुए भव सिंधु रे। तर हुए भव सिंधु रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा पार्षती राधा पार्षती श्री राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम। जय लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna. So I feel at loss of words. There's so many senior devotees there, and so many devotees here. So, but I'll try my best to help the devotees as possible. So, आज जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने साधना में जो है अलग अलग चैलेंजेस को जो है ओवरकम कर सकें, राइट? सो हमारे लिए लाइक अगर हम सोचे, हम सब जो डिवोटीज हैं, यू थिंक फॉर योरसेल्फ, जब आप पहली बार किसी डिवोटी के टच में आए और वो टाइम, स्टार्टिंग के टाइम किस तरीके से आप जो है प्रयास कर रहे थे, बस किसी तरीके से मैं जो है कनेक्ट हूँ और इस्कॉन के बारे में जानूँ, भगवान के बारे में जानूँ। वो एक नयापन जब होता है, एक अलग ही जोश होता है, राइट? और फिर नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलता है ना? और बहुत केयर, लव केयर भक्तों के साथ रहता है। यस, सो यू ऑल रिमेम्बर दैट टाइम? यस, है ना? सो वी एक्सपीरियंस दैट थिंग। और फिर धीरे धीरे जो है अलग अलग चीज़ें आती हैं हमारी लाइफ में, स्ट्रगल्स आते हैं। सो सो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स या कोई ना कोई हमें जो है खींचता है कि नहीं, क्यों इस्कॉन जा रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा भक्ति कर रहे हो। बट हमारे अंदर एक होता है कि नहीं, करना है, सही है, ये चीज़ सही है, क्यों मेरे को रोका जा रहा है? तो हम छुपते छुपाते फिर भी माला करते हैं, छुपते छुपाते भक्तों के साथ मिलने जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, बेस जाते हैं, है ना? सो एक वो हमारे अंदर रहता है कि नहीं, जो ये चीज़ करना है, मेरे को करना है ना? सो फिर भक्तों के साथ मिलके कई सारी चीज़ें, कैंप में जाने को मिलता है, वृंदावन जाते हैं या मायापुर जाने को मिलता है, जैसे आपके पास वहाँ है। सो इतना एक एक एक्साइटमेंट रहता है, एक एनर्जी रहता है, चाहे कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डू दिस थिंग। यस, डू यू फील इट? यस, नो? क्या क्या रिस्पॉन्स है आप सबका? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, राइट? यस। सो वो चीजें, है ना? फिर धीरे धीरे कुछ होता है हमारी लाइफ में, है ना? याद आ रहा है वो सब? सो आई थिंक यू वुड बी ऑल लाइक अराउंड 6 to like 8 months into Krishna conscious or more than that, right? So एक वो एक्साइटमेंट हमारा फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा फेड होने लगता है, या प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं चेंज होने लगती हैं, राइट? पहले जिस इंथू से हम आते थे वो कहीं ना कहीं जो है छूट जाता है, या प्रभु जी अभी तो नहीं, अभी पढ़ाई, प्रभु जी अभी, प्रभु जी जॉब, अभी प्रभु जी जो है घर पे ये चीज आ गया है। पर वो चीज स्टार्टिंग में नहीं होता था, मतलब इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ ओनली। सो एक वो रहता, चाहे घर वाले कुछ बोले, नहीं जाना है, रात को 11-11 बजे आ रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, है ना, गाड़ी लेके बाहर है। वो पेरेंट्स टेंशन में, कहाँ गया बेटा मेरा, राइट? सो बट एक वो रहता था, नहीं करना है, प्रभुपाद के लिए करना है, right? So somewhere many of you would be already doing very nice sadhana, but somewhere we need to find वो कहाँ जो है हम अभी मिस आउट कर रहे हैं, राइट? वो टेस्ट, वो पहली बार भगवत गीता जब पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, अरे कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है ना? मेरे को ढूंढना है कहाँ की किताब है ये, कहाँ क्लास होती है गीता की, है ना? और फिर उसके बाद जो है वही किताब को देखना सा, हाँ ठीक है, अच्छा साधना कार्ड भेजना है, ओहो आज तो साधना ही नहीं करा, अरे 0 लिख के भेजना पड़ेगा। रोज ही डांटेंगे, चलो भेजता नहीं। है कि नहीं? होता है, किसके साथ होता है ऐसा? मन मन में आता है ऐसा कुछ, है कि नहीं? डर लगता है। अब वही प्रभु जी, जिन प्रभु जी के पीछे हम भागते थे, प्रभु जी ये बता दो, ये बता दो, है ना, ये जानना है। और प्रभु जी हो सकते हैं, अरे यार बस ठीक है, वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट, आई विल गिव यू टाइम। पर अब हम उन्हीं प्रभु जी से थोड़ा सा डरने लगते हैं कि अरे जो है कैसे प्रभु जी को क्या बताऊं, है ना? सो so different challenges come, है ना? There's some which I have pondered upon, मैं सोचा थोड़ा बहुत।
तो आ, फिर क्या होता है, हमारा जो है ना प्रभाव इसका पड़ता है किस पे, हमारे डिवोटी रिलेशंस पे, है ना। तो जिन डिवोटीज के साथ हम रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ फिर हमारी थोड़ी अनबन होने लगती है, कुछ दिक्कत आने लगती है, या हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो ड्राई सा लगने लगता है ना। हमें लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, अरे इतना टाइम मैंने लगा दिया इस कौन वालों के साथ, इससे अच्छा मैं जो है अपनी पढ़ाई कर लेता, इससे अच्छा मैं जो है कुछ जॉब में कर लेता, है ना, तो अच्छा हो जाता मेरा। तो that's when it's a very nice time for Maya to pull us down, right? So Krishna consciousness, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, it's you know टू एज स्वॉर्ड, है ना, दो धारी तलवार है। तो हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत होगा, राइट। so it's a dynamic process, either we go upwards or it's like so we need that pull, we need that push, so that's why we need constant association of devotees. So हमें, हम पढ़ाते भी हैं, आप सब क्लासेस ले रहे होंगे अपने अपने एरियाज में, अपने अपने डिवोटीज को कल्टीवेट करते होंगे, तो समझाते होंगे। तो ए फॉर एसोसिएशन, तो ए फॉर एसोसिएशन का अर्थ क्या रहता है हमारे लिए, सीनियर डिवोटीज हैं, इतने सुंदर सुंदर भक्त हैं, है ना, और शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं। प्रभुपाद जी का संग हम कैसे करते हैं, वाणी के थ्रू, वाणी के थ्रू कैसे करते हैं, हम प्रभुपाद लेक्चर सुनते हैं, है ना। तो आप सब सुनते हैं प्रभुपाद लेक्चर रेगुलरली, यस, और प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं, है कि नहीं। सो दैट इज हाउ वी एसोसिएट विद प्रभुपाद. So for our advancement in bhakti, the most important component in our life is associating with the Vani of a pure devotee. And another devotee we have got, pure devotee. Can anyone guess? We have two devotees, pure devotees in our life who we can associate daily anytime. The one is Prabhupada, another devotee, another pure devotee. Quiz time for everyone. सुबह के टाइम में मिलते हैं आप उनसे हर रोज। टिक टिक वन, टिक टिक टू। नो, प्रभु तो प्रभु है ना, डिवोटी की बात कर रहे हैं, हरिनाम प्रभु, महाप्रभु। ओके, महाप्रभु इज कृष्णा, सो another, okay, time is up. So another pure devotee we have got is Tulsi Maharani. Isn't it? So we have Tulsi Maharani with us. So Tulsi Maharani का एक बहुत अच्छा प्रेरोगेटिव, बहुत अच्छा एडवांटेज हमारी लाइफ में क्या है कि when we sit in front of her, है ना, our mind, है ना, बहुत फ्लिकरिंग नहीं होता। लाइक आप साथ सामने बैठ के जपा कार्ड सामने रख के, है ना, जप करोगे, सबका मन शांत रहेगा, कंपेयर टू, है ना, टेम्पल हॉल से बाहर जाके जप करना, या कहीं अलग एनवायरनमेंट में जाके। बेस्ट इज तुलसी महारानी के सामने बैठ के, जपा के कार्ड के सामने अच्छे से जप करने से। So we have two devotees, pure devotees in our life to associate with, right? Yes, thank you. So this way, most of our sadhana, starts with the association of devotees. So A for association is the basis, है ना, and then A for association होगा तो क्या होगा, chanting भी हो जाएगा, B for book reading भी हो जाएगा, C for chanting भी हो जाएगा, yes or no, और प्रसाद तो मिलेगा ही हमको, D for diet and D for DT darshan, है ना। So this way, so association of devotee is very important. From that we start our bhakti, right? And Prabhupada also says one another thing, that Shravanam. So Shravanam करने से हम जो है हमारे भक्ति लता बीज का सींचन जो है ना, वो होता है। So right, so भक्ति का बीज मिल गया, अब उसको जो है हमें क्या है, एक माली की तरह जो है कल्टीवेट करना है। तो हम क्या बताते हैं कि हमारा जो है भक्तों का संग जो है वो क्या है, फेंस की तरह है कि नहीं, फेंस की तरह है। अब उसको भक्ति लता को हमें बढ़ाना है, तो हम क्या करना है, हमें श्रवण और कीर्तन का जल डालना है उसके अंदर, है कि नहीं। सो श्रवण और कीर्तन का जल अगर नहीं डालेंगे
तो क्या हो जाएगा, पौधे का क्या होगा? मुरझा जाएगा, है कि नहीं? फिर ऐसे आते कभी कभी प्रभु जी, है ना, आते हैं भक्त लोग, प्रभु जी कुछ ठीक नहीं लग रहा प्रभु जी, प्रभु जी बड़ी टेंशन है लाइफ में। अच्छा क्या टेंशन हो गया? तो फैसिलिटेटर को भी टेंशन हो जाती, क्या हो गया यार, क्या सब कुछ तो ठीक था इसका। प्रभु जी बस, अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक है प्रभु जी, घर पे जॉब सब ठीक है प्रभु जी, जॉब पे? अच्छा तो क्या दिक्कत है? बस प्रभु जी मन नहीं लग रहा प्रभु जी, क्या करूं? और फिर साधना, अच्छा साधना कार्ड दिखाओ प्रभु जी, साधना, हाँ 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 मैं भेजता हूँ प्रभु जी, आपको साधना कार्ड भेजता हूँ। प्रभु जी मन नहीं लग रहा प्रभु जी। तो क्या होता है, वही जो सींचन है हमारा वो बंद हो जाता है, वाटरिंग द ट्री, द जड़ इज गॉन। एंड देन नेचुरली फिर क्या होगा, जब सूखापन लगने लगेगा, ड्राइनेस लगने लगेगा, तो माया की जो धूप है ना, वो तेज हो जाएगी और तेज हो जाएगी, गर्मी लगेगी और भीषण लगेगा, है ना। सो फिर हमें, वी विल फील वेरी वीक, वेरी वीक। जो चीज हम बेसिकली जो चीज होती थी वो भी डर लगने लगे करने में, राइट। और फिर स्लिप होगा, भक्ति में स्लिप होगा, स्लिप होने लगेगा व्यक्ति, एक स्लिप, दो स्लिप, तीन स्लिप, और फिर पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। सो इसलिए हमें जो है कांस्टेंट डिवोटी एसोसिएशन करना है। कैसे करना है? ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हार्ट टू हार्ट, है ना। ददाति प्रति घन्नाति घूयम आख्याति प्रयच्छति, है ना, घूयम आख्याति प्रयच्छति, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, फोर्थ श्लोक में आपको मिलता है। तो क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी, कि वी नीड अ डिवोटी, वी नीड अ डिवोटी हु वी कैन विथ फुल फेथ, विथ फुल हार्ट, है ना, अच्छे से हम उनको अपना हार्ट रिवील कर सकें, वट एवर इज गोइंग इन आवर लाइफ, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, है ना। इंटेग्रिटी मीन्स कि व्यक्ति कमरे के अंदर बंद होकर अकेला क्या करता है ना। इंटेग्रिटी, व्हाट इज हिज इंटेग्रिटी, राइट। सो सिमिलरली वी शुड बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट विद आवर सीनियर्स अथॉरिटी, सो दैट वी, हमें तभी तो हेल्प कर पाएंगे। डॉक्टर को बोलेंगे नहीं बीमारी है ही नहीं, तो डॉक्टर के पास क्यों जाने का है? डॉक्टर की बोलेगा ठीक है जाओ मजे मारो, क्या दिक्कत है? बट अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर क्या होगा? फिर फर्स्ट स्टेज पता नहीं लगे, सेकंड स्टेज पता नहीं लगे, थर्ड स्टेज पे कैंसर आ गया है, फोर्थ स्टेज पहुंच गया, अब क्या करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू हैव बेसिकली with our association of devotees, है ना। एंड रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना, जैसे हमारे सीनियर्स जो हैं, है ना, प्रभु जी लोग जो हैं रेगुलर क्लासेस करते हैं, फैसिलिटेटर से रेगुलर मिलना, एवरी 10 days to 15 days आपका एक होगा कि आपको मिलना होगा, है कि नहीं? सो ज़्यादा भी जा सकते हैं, बट रेगुलरली एक रिपोर्टिंग होना, है कि नहीं, कि मैं प्रभु जी इस तरीके से कर रहा हूँ, मैंने ऐसे साधना करा, मैं ये प्रीचिंग का ट्राई कर रहा हूँ इस तरीके से। और जिससे यू आर शेल्टर्ड, ऐसा लगना चाहिए कि शेल्टर्ड है, हाँ व्यक्ति जो है चाहता है आगे बढ़ना, है ना। वरना फिर क्या होगा कि हम इंडिपेंडेंट होने लगेंगे, जैसे ऐसे लगने लगता है धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, है ना, अब मुझे जरूरत नहीं है किसी की, है ना, आई एम इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। वो जैसे ही व्यक्ति को लगता है इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, वही व्यक्ति जो है माया में फिर फंस जाता है ना। तो इसलिए हमेशा हमें ट्राई करना है दैट वी आर डिपेंडेंट, है ना, वी शुड फील डिपेंडेंट, व्हाई नॉट। हमें स्टार्टिंग से हमारे सीनियर्स ने हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाया, बड़ा करा, हाउ कैन वी, जब तक वो नहीं कहते कि यू आर इंडिपेंडेंट नाउ यू शुड गो टू, जैसे प्रभुपाद भेजते थे, है ना, ऐसे ग्लोब था प्रभुपाद जी के पास, ऐसे ग्लोब घुमाते थे, उंगली रखते थे, रुक रुक जाता था, अच्छा ओके रशिया, सो यू, ऐसे सन्यासी होते थे उनके सामने या कोई भक्त होते थे, यू हैव टू गो टू रशिया टुमारो, मॉस्को टुमारो। ऐसे फिर घुमाते थे, हाँ नेक्स्ट, सो यू हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। हमारे साथ ऐसा नहीं होता एटलीस्ट। सो हमें इतना स्ट्रांग, प्रभुपाद जी बोलते थे एवरी डिवोटी शुड बी सो कॉम्पिटेंट, क्या, कि एवरी डिवोटी शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग, मतलब हमें इतना स्ट्रांग होना है कि कीर्तन भी करना आना चाहिए, मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, क्लास भी देना आना चाहिए, मृदंग करताल हारमोनियम भी बजाना आना चाहिए, कुकिंग भी करना आना चाहिए, एवरीथिंग, मतलब हर चीज का थोड़ा थोड़ा आना चाहिए,
है कि नहीं? तो फिर क्या होगा, यू विल नॉट फील फियर कि अरे प्रभु जी ने मेरे को बोल दिया भक्तों को लेके जाना है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रभु जी आज तक तुम्हें किताब ही नहीं बांटा, मैं क्या बंटवाऊंगा बच्चों से, है ना? प्रभु जी क्लास सेटअप करने को बोल रहे हैं, अरे क्लास सेटअप हमेशा मैं इसी से भागता था। इन्वेंट्री सेवा प्रभु जी सबसे ज्यादा टेंशन इसी से होता है मेरे को, कभी भी डांट पड़ जाती है प्रभु जी, है कि नहीं? सो वी शुड समटाइम्स फाइंड दैट सर्विस कि जिसमें सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, डांट मतलब कृपा मिल रही है प्रभु, है कि नहीं? दैट इज मर्सी ऑफ डिवोटीज। तो डांट खाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है ना? डांट खाना, झेलना उस चीज को, दैट इज मर्सी। तो फिर क्या होगा, आप ही को ज्यादा पूछेंगे ना कि दैट डिवोटी वो सारी सेवा करता है, अच्छे से करता है, डांट भी देते हैं फिर भी टिका रहता है अच्छे से, तो हु विल ग्रो? यू विल ग्रो ना। गोलोक आपको जाना है कि पड़ोसी को जाना है, किसी और को लेके जाना है? नहीं नहीं प्रभु जी मेरे को मत लेके जाओ, और सबको ले जाओ। इज दैट व्हाट यू वांट? So that's why we should feel this dependence, this connectivity. है ना? If there is connectivity, प्रभु, then naturally don't worry. है ना? कितना ही इतने इतने सारी चीजें, if you would have read Prabhupada Leelamrit, so many instances would have happened. So with so many devotees, with so many Prabhupada disciples कि उनको कुछ हो गया, दिक्कत हो गया, चले गए, बट स्टिल जब वो वापस आते थे प्रभुपाद जो है उनको एक्सेप्ट करते थे, है ना? और उनको लगाते थे फिर सेवा में, और बड़ी सेवा दे देते थे, है ना? So we should feel that connectivity, that heart to heart relation with our seniors, है ना? तो फिर क्या होता है, क्योंकि it's not like कि आप 1 साल 2 साल के लिए हो, no, this relationship with devotees is, eternal actually, lifelong, क्या eternal है, isn't it? जन्मे जन्मे प्रभु से ही, है कि नहीं? नहीं गाते हैं हर सुबह हम, जन्मे जन्मे प्रभु से ही? तो जन्मे जन्मे का क्या अर्थ हुआ? ये थोड़ा है प्रभु जी की बस एक आधा साल जो है बस इस्कॉन में सेवा कर लिया, बाय बाय टाटा, नहीं। So a lifelong commitment, lifelong eternal commitment to our seniors, superiors, to Guru and Guru Parampara. So वो relation कैसे develop करेंगे हम, है ना? Practically throughout this universe, what is there? Only there is Krishna and there are devotees who are real, eternal. Otherwise, everything is what? Illusion, Maya only, isn't it? So that's why we should have strong connectivity with our seniors, being sheltered, Sharnagati, है ना? So that way, what we'll be able to do, we will be able to come out those problematic situations in our life, है ना? और constant guidance में रहेंगे, touch में रहेंगे, तो हम जो है बचे रहेंगे, है ना? So this is very important, है ना? So this way we can do other things, फिर हम अच्छे से साधना भी कर पाएंगे। कभी साधना लो भी जा रहा है तो हम क्या करें, जाके अपने सीनियर्स के पास जाके, प्रभु जी थोड़ा आपके साथ बैठ के रीडिंग हेयरिंग कर लूं, है ना? या यू कैन फॉर्म अ ग्रुप ऑफ डिवोटीज, है ना? इस तरीके से। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ आई विश टू हियर फ्रॉम योर साइड, राइट? सो हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, वैसे ही ऑनलाइन बड़ा बोरिंग सा लगता है। आधे जो है कैमरा ऑफ रहते और आधे जो है वो बोल नहीं पाते। तो इसलिए आई विश दैट वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, एंड व्हाट इज योर एस्पेक्ट। हमने तो अपना डिस्कस करा, बताया। सो आप सब आई थिंक अनम्यूट कर सकते हैं। यस, या यू कैन अनम्यूट, राइट? तो एक एक करके आप जो हैं अपने अपने challenges रख सकते हैं, राइट? सो वी हैव मेड आई हैव मेड दिस थिंग अब सम, तो हर अलग अलग एस्पेक्ट में चैलेंज आता होगा साधना के, हमारे ये है ना? सेवा भी हो सकता है, सेवा का अगर है तो वो भी हम जो है ले सकते हैं, और चैट बॉक्स भी जो है वो हम साइड में रख लेते हैं, तो कोई चैट में रखना चाहे तो, या ओके। So, anyone wish to share what challenge they feel? So, we will first tabulate the challenges, and then we will find out some probable solutions to that. क्या हम कर सकते हैं? It may vary from person to person, right? इसलिए आपको facilitator दिए गए हैं जिससे आपके जो challenges हैं उनको personally deal करा जा सके. But still, for as a activity, together we can outline some challenges.
सो कौन शुरू करना चाहेंगे? ओके, प्रशांत मिश्रा प्रभु जी जो है बता रहे हैं रीडिंग एंड वेकअप। सो यस, तो क्या चैलेंज आप फेस करते हैं इसमें, रीडिंग में? You can also unmute yourself and you can tell. Okay. Anshuman True, you can tell. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes. प्रभु जी, बुक रीडिंग में प्रभु जी एक प्रॉब्लम आता है कि प्रभु जी जैसे आगे आगे हम जाते हैं ना, मतलब पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो प्रभु जी प्रीवियस जो मतलब कैंटोस के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो मतलब फेड अवे थोड़ा लगता है कि हाँ प्रभुपाद जी ये तो बोले हैं, और फोर्ट में सेम चीज रिपीट हो जाता है एक एक बार। तो प्रभु जी वो कैसे डील करना है? मतलब हम रीडिंग कर रहे हैं, आगे रिपीट होता है तो आगे प्रभु जी मतलब आगे आगे जब हम जाते हैं, नया नया पढ़ते हैं, तो वो अच्छा लगने लगता है। तो हाँ प्रीवियस में भी बहुत कुछ इंसिडेंट होते हैं जो रिपीट हो जाता है, मतलब हाँ प्रभुपा जी उसको फिर से बोलते हैं परपोर्ट हाँ में। हाँ। तो वो प्रभु जी पिछला पिछला में जो होता है ना कंटेंट, वो हम इसको पूरा रिप्लेस ही कर देते हैं माइंड में, कि वो वाला कंटेंट हट ही जाता है पूरा माइंड से। अच्छा, मतलब तो अभी का कनेक्टेड, हाँ प्रेजेंट वाला याद रहता है, पुराने वाला भूल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, कनेक्टेड कैसे रखना है हमको? ओके ओके, समझ गया। अच्छा, ठीक है, तो पुरानी वाली चीज हमने पढ़ा, वो हम भूल जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट। एक और क्या चैलेंज हाँ, आता और एक प्रभु जी, मैं मतलब स्टार्टिंग तो श्रीमद् भगवत गीता, उसके बाद भागवतम से शुरू किया हूँ। तो मैं मतलब स्मॉल बुक्स नहीं पढ़ा हूँ, तो स्मॉल बुक्स अभी पढ़ता हूँ प्रभु जी, वही लगता है कि ये तो सब भगवत गीता में है, तो वो करना चाहिए या नहीं, वो एक चैलेंजेस है। है? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ प्रभु और जी, ये किसी दो और चैलेंज। एस्पेक्ट में रीडिंग से रिलेटेड, रीडिंग के अलावा? हाँ प्रभु जी, वो मेरा क्लासेस मतलब लेट नाइट तक रहता है कोचिंग में, तो थोड़ा उठने में थोड़ा बीच बीच में कभी हो रहा है, मतलब साधना में थोड़ा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ प्रभु जी। विकास प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। गुरु जी, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मतलब चैंटिंग के टाइम में जब मतलब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ मतलब भगवान की लीला के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब दामोदर लीला हो कि गोवर्धन लीला हो, बट ये ज़्यादा टाइम नहीं रहता, थोड़ा टाइम तक फिर मन भटक भटक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है उस हम्म लीला में। हम्म तो अ, कैसे पूरा चैंटिंग में उसमें रहना है बस। अ, ओके, और है कि या और एक प्रॉब्लम है कि मैं गाना सीख रहा हूँ, गाना गाता हूँ, तो क्लासिकल सीख रहा हूँ। हम्म तो चैंटिंग करने तो हमारे सर ने हमको बोला है कि ज़्यादा बोलना नहीं, कम बोलना है, थोड़ा वॉइस के ऊपर प्रेशर आएगा। हम्म तो चैंटिंग जो इतना 10 राउंड्स करते हैं, तो वॉइस थोड़ा ऐसे ऐसे लगता है कुछ ज़्यादा करने से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई एस्पेक्ट जिसमें आपको चैलेंज फील हो रहा है? हरे कृष्णा वेकअप्स? प्रभु जी। ओके, यस प्रभु। प्रभु जी, बुक रीडिंग में मन ही नहीं होता है। बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ बुक रीडिंग, मतलब चैंटिंग, सब बहुत चैंटिंग होता है। प्रभुपाद का लेक्चर भी मतलब ऑनलाइन से रीडिंग करता हूँ, लेकिन बुक रीडिंग में मतलब बोलूँ तो जो पूरा मतलब मन होता ही नहीं। बुक पहले 2 दिन कैसे कैसे मतलब भगवत गीता पढ़ा था, अभी और मन ही नहीं होता है कुछ। अच्छा, और प्रभु जी, मंदिर जब आता हूँ तो सुबह उठने का कुछ मतलब पता ही नहीं चलता कि सुबह नींद टूट जाता है, लेकिन जब मंदिर नहीं आते हैं तो सुबह सुबह उठने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।
हम्म, अगर जल्दी भी सो जाएंगे तब भी नहीं उठ पाते हैं। ये सब प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं, अब तक मुझे नहीं मिल पा रहा है। हम्म, ओके। एनी अदर थिंग, और इसके अलावा कोई और चैलेंज? हियरिंग करते हैं, चैंटिंग होता है और सब होता है। हरे यस, कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो कोई लेक्चर देखता हूँ ना तो अल्टर प्रभु जैसे होते क्या है कि कभी कोई और प्रभु जी का लेक्चर्स, कोई नहीं वो थीम्स होता है YouTube पे कि ये है कुछ हाईलाइट करके, तो उसको देख लेता हूँ। एक प्रॉपर तरीके से जो लेक्चर्स का कंटेंट होते हैं ना प्रभु, जैसे प्लेलिस्ट, तो उसको देखना चाहिए, जैसे भगवत गीता का 1 by 1। तो वो प्रभु उससे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है कि कोई राधे श्याम प्रभु जी से जी कुछ अलग चीज का लेक्चर्स बता रहे हैं तो उसको सुनना है, फिर अलग कोई प्रभु जी बताएं तो उसको लेक्चर सुनना है। तो ये सही है प्रभु, या फिर हमें कोई एक प्रॉपर प्लेलिस्ट को चुन करके 1 by 1 लेक्चर सुनना चाहिए? ओके। हम्म, हाँ, हाँ, ठीक है। और किसी का चैलेंज, और कोई चैलेंज आपको हियरिंग के अलावा? मेरे से प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब मंदिर जाता हूँ तो मंदिर के जाने के 2-3 दिन, मतलब मंदिर जाने का संडे संडे हम लोग का प्रोग्राम रहता है। तो उस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद तो सारा मतलब 4-5-6 दिन तक पूरा मन लगता है भक्ति में। हम्म, मतलब एक संडे मिस हो जाएगा तो फिर मतलब माइंड डिस्टर्ब डिस्टर्ब रहता है। हम्म, मतलब भक्ति में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और एक है कि प्रभु जी लेक्चर रीडिंग, लेक्चर सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो टाइम टाइम नहीं रह रहा। मतलब यूट्यूब में एक मतलब सुन रहे हैं तो अलग एक कुछ ऐड आ जा रहा, ऐड आने के बाद कुछ अलग अलग मतलब अलग कुछ देखने लग जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है प्रभु जी। और बुक तो रीडिंग सुबह रात को हो जाता है, मतलब सोने के 1 घंटे के बाद बुक रीडिंग करने के बाद हम लोग सो जाते हैं। ऐसा प्रॉब्लम है। तो आपका मन नहीं लगता है तो 3 दिन के बाद मंदिर से आने के? और प्रभु जी और हाँ प्रभु जी, यही प्रॉब्लम है, मतलब कि बहुत नहीं नहीं 2-3 दिन नहीं प्रभु जी, मतलब मंदिर एक संडे मिस हो जाएगा तो कुछ मतलब भक्तों के साथ अटैच नहीं रहेंगे तो थोड़ा मतलब हम्म, अलग भटक जाते हैं। या, ओके, ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? सो वील डू दिस like 2 minutes more. We can take 2 more devotees. Yeah. और हाँ, बोलिए अंशुम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो मतलब और एक था, मतलब वो प्रभु जी वो दोनों भक्ति और मतलब लाइफ को बैलेंस कैसे करना है? वो बीच बीच में कभी क्या होता है ना, भक्ति जब ज्यादा चल जाता है तो मटेरियल लाइफ में मन नहीं लगता, फिर मटेरियल लाइफ में भी ज्यादा चलता है तो भक्ति थोड़ा डाउन हो जाता अच्छा, ओके, है प्रभु जी। ओके। एनीथिंग एल्स? Guruji, one question is in chat box, Guruji. Yes, Ruji. I chant fast but with clear voice. Is it okay? During chanting, my mind disturbed with preaching plans. तो ये मैंने ऐड करा है, mind disturbed with preaching plans वाला। और chant fast with clear voice. Is it okay? Chant fast. It depends if you are able to hear each and every mantra, each and every syllables. So you can like personally talk with your facilitator and discuss this thing, because वो ज़्यादा अच्छे से आपको deal कर पाएंगे face to face. Okay, so I think we have collected kind of most of the most common situations with us. Okay, so we'll start with sleep. Actually, most of this wake up wala problem is related to sleeping on time. तो स्लीपिंग ऑन टाइम जब ठीक हो जाएगा तो वेकअप भी हमारा नेचुरली ठीक हो जाएगा. सो फ्रॉम 9 to 12 o'clock, 9 to 12 o'clocks, we get not 3 hours but actually 6 hours equivalent of rest to the body and mind. The best time to sleep for us is 9 o'clock. और कितना देर सोना चाहिए? बिकॉज हम कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते. मोस्टली यू वुड बी इनटू IT सेक्टर और स्टडिंग, राइट?
सो यू आर नॉट लाइक फिजिकली वेरी मच टायर्ड, और सबका मोस्टली तो वर्क फ्रॉम होम ही होता है। सो प्रैक्टिकली व्हाट वी आर टायर्ड, बस वही होता है कि देखते रहते टीवी और मोबाइल लैपटॉप, तो वो आंखों से क्या है, नींद चली जाती है ना। कॉफी पीते नहीं, चाय पीते नहीं, तो बचा क्या फिर। तो वही है कि एक बारी माइंड में सेट हो गया कि भाई 11 बजे सोते हैं, 11 बजे सोना है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स जैसा बनने लग गया। बट फिर क्या होगा, आप 12 बजे सो गए तो 12 से 3 1 घंटे का इक्वलेंट नींद मिलता है, रेस्ट मिलता है, दैट इज 1 आवर, मतलब 3 आवर्स। देन 3 to 6 हमें आधे घंटे का, मतलब 1.5 घंटे का, 3 घंटे सोने के बाद भी 1.5 घंटे का। और दिन में सोना तो इट्स लाइक कि आप दिन में सो के उठोगे तब भी आपको थकान लगेगा। इट इज लाइक नेगेटिव, राइट। तो बेस्ट टाइम क्या हुआ सोने का हमारा, 9 o'clock टू, लाइक प्रभुपाद कितना बोलते हैं, 6 घंटा, 6 से 8 घंटा मैक्सिमम। इफ यू आर वेरी मच लेबोरियस इन योर फिजिकल एक्टिविटीज तो 8 घंटे तक, और कम है तो 6 घंटा इज सफिशिएंट। हम लोग लाइक ब्रह्मचारी मोस्टली वी स्लीप 5.5 to 6 hours, उसमें रेस्ट हो जाता है, राइट। सो 9 to 3 o'clock इज लाइक बेस्ट फॉर अस, इसलिए हम 3:30 सब उठ जाते हैं फिर मंगल आरती के लिए। सो आपको इसके लिए प्रयास शुरू करना पड़ेगा। आप अलार्म लगाओ, जैसे अभी भी मेरे अलार्म बज रहे थे क्लास के दौरान कि 8:30 हो गया, सोना है। तो अलार्म लगाओ कि भाई 8:30 बजे से बजना शुरू हो जाए, जल्दी से वाइंड अप करना शुरू करो जो भी चीजें हैं आपकी, है ना। तो जिससे आपको रहे कि भाई मेरे को 9 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, तो धीरे धीरे करते वो 11 से 10 आएगा, 10 से धीरे धीरे करते 9:30 आएगा। सो 9 से 9:30 के बीच में आप सोने का प्रयास करोगे तो फिर हम जो है जल्दी उठ पाएंगे। अब जहाँ तक बात है लेट, जैसे किसी का नाइट शिफ्ट है ऑनलाइन, किसी का फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हैं, यूएस में किसी का नाइट शिफ्ट है, या जैसे किसी ने यहाँ पे बताया कि लेट क्लास है, सो दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट को तो हम नहीं कर सकते। बट फिर भी उसमें यही है कि आप बैलेंस आउट करो, इट्स लाइक यू आर शिफ्टिंग योर व्हील, है ना। तो अगर आप लेट सो रहे हो तो इसका मतलब आप लेट उठो, ठीक है, बट आपका वो साइकिल उतना ही चलना चाहिए, राइट। मतलब आपकी साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 8 3 24, सो 8 hours यू आर गिविंग टू योर बॉडी, खाना पीना रेस्ट। 8 hours यू आर गिविंग टू स्टडीज, स्टिल यू हैव 8 hours। भाई 8 घंटा पढ़ने से ज्यादा क्या है, जॉब करने से क्या है, 8 घंटा फिर भी बचेगा, 8 नहीं तो चलो 6 घंटा, 6 घंटे नहीं 4 घंटा तो बचेगा। 4 घंटे साधना, राइट। 2 hours of 2.5 hours ऑफ चैंटिंग, तब भी आप रीडिंग हेयरिंग तो कर ही सकते हो। सो आई डोंट थिंक दैट साधना नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, लाइक हम सब ने कॉलेज किया, आई हैव डन कॉलेज, आई हैव डन 16 राउंड थ्रू आउट माई कॉलेज, स्टडीज, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग, एंड देन जॉब ऑल्सो। सो इट कैन बी डन, यू जस्ट नीड टू बी फोकस प्रायोरिटी। तो इसके लिए लाइक टाइम मैनेजमेंट का कोर्स हम करते हैं ना, तो उसमें क्या बताते हैं कि आप अपना प्रायोरिटी चार्ट बनाओ, कि आपको प्रायोरिटी क्या क्या है आपको डेली का। लाइक गूगल मैप, आपके पास गूगल कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर में आप हर दिन का स्केड्यूल बनाओ, कि इतने से एक जेन्युइन स्केड्यूल तो होता ही है आपका, कि सुबह से इतनी इतनी चीजें करनी है मेरे को, और फिर उसमें बीच का टाइम होता है कि भाई आज ये काम आ गया, अच्छा इसको करना है, तो अपना रीडिंग हेयरिंग आप ऊपर नीचे कर लो, बट चैंटिंग सुबह में ही करने का प्रयास करें। और फिर एडहॉक आ गया तो एडहॉक के लिए भी थोड़ा टाइम रखें। तो अगर आप रेगुलरली अपना ये बनाते रहेंगे स्केड्यूल, वीकली स्केड्यूल, मंथली स्केड्यूल, है ना, तो आपको पता है अच्छा कैंप आने वाला है, अभी बच्चों को लेके जाना है, उसमें ये आएगा चैलेंज, है ना, तो मेरे को घर में ये भी चीजें हैं। तो उन चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे, जब वो सामने दिखेगा। एक वाइट बोर्ड रखी है, तो मैं भी अपने रूम में वाइट बोर्ड रखता हूँ, सारा उसमें ये स्केड्यूल है, अच्छा ये आ रहा है, ये आ रहा है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है, तो वो सामने आपके पास रहना चाहिए। इफ यू कैन नॉट सी इट, इफ इट इज आउट ऑफ योर साइट, इट इज आउट ऑफ योर माइंड। तो कीप अ वाइट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें लिखिए सारी चीजें, और अपने गूगल कैलेंडर में डाल के रखिए। तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा इस तरीके से। टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, अपना सारा टाइम मैनेज करके रखिए, आपका साधना आराम से होने लगेगा सारी चीजों में, है कि नहीं। सो दिस इज द बेस्ट थिंग आई थिंक, स्लीप बाय 9, है ना। तो इसमें आई थिंक सारी चीज़ें हो जाएंगी, स्लीप करेंगे, टाइम पे उठ जाएंगे, है ना, इस तरीके से। फिर आता है
अच्छा, नॉट इफ नॉट इन टेम्पल लेट उठते हैं, तो यही है कि जैसे आपके पास साथ में कोई डिवोटी हो आसपास तो आप उसकी हेल्प लो। अगर वो नहीं है तो आप जो है उस कोई डिवोटी के साथ मिला लो कि भाई मेरे को तुम सुबह उठा के फोन करना है, तुम उठना टाइम पे उठते हो तुम, अच्छा जिसकी साधना अच्छी, जैसे स्कूल में नहीं होता था कि ये टॉपर है, मम्मी क्या कहती थी टॉपर के साथ बैठो अच्छे तुम्हारे नंबर आएंगे फिर तुम भी अच्छे बनोगे, तो वैसे ही जो डिवोटी अच्छा है स्ट्रांग है साधना में उसका एसोसिएशन करना है ना। तो उनको बोल प्रभु जी आप उठते हो टाइम पे तो मेरे को भी एक कॉल कर दिया करो, मैं उठने का प्रयास करूंगा, है कि नहीं। या फिर आप बेस में शिफ्ट हो जाओ, या फिर नाइट स्टे करो, तो हम यहाँ पे बेस है तो हम बच्चों को बुलाते हैं सैटरडे नाइट स्टे कराते हैं। तो सैटरडे नाइट स्टे में एक वो उनको लग जाता है कि ठीक है यार थोड़ा मैं भक्तों के साथ धीरे धीरे करते करते टाइम पे उठूंगा जल्दी, तो एक आदत लग जाता है ना। तो इस तरीके से प्रयास कर सकते हैं, और कुछ सोल्यूशन और तरीके से सोच सकते हैं अपने लिए जो हो, है ना। पर्सनल है तो अपने फैसिलिटी से और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट ये एक तरीके हैं कि किसी डिवोटी से पूछें, या नाइट स्टे करने जाए, या कोई आसपास रहता है तो उनके पास जाके मंगल आरती करें, या सो एंड सो, राइट। एंड देन वी हैव रीडिंग। ओके, सो रीडिंग का ओल्डर फॉरगेट, तो इसमें जो है मतलब मैं तो जो है नोट्स बनाता हूँ। सो कैन यू सी माई स्क्रीन, नोट्स दिख रहा है आपको, है ना। सो लाइक आई डू बुक रीडिंग फ्रॉम हार्ड बुक ऑल्सो, एंड ऑल्सो दिस वन नोट। सो वन नोट पे आई लाइक हाईलाइट, आई हैव डिफरेंट लाइक स्कीम्स, तो कुछ इम्पोर्टेंट है कुछ तो आई यूज येलो, फिर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेबल पॉइंट है सो आई यूज ग्रीन कलर। तो ये चीज़ इस तरीके से, है ना, इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको फिर कुछ हाईलाइट कर देता हूँ। और ये जो है हमारा एक वो चलता है पैटर्न, डिस्कवर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन रियलाइजेशन, इसको कहते हैं DUAR, ड्यूआर नोट्स, है ना। डिस्कवर पॉइंट्स में हम लिखते हैं कि क्या क्या नई नई चीजें मेरे को इसको पढ़ने से पता लगी पहली बार, है ना। अंडरस्टैंडिंग कि कोई श्लोक है या कुछ ऐसी चीज है जो मैंने इसको समझा, है ना, है ना। एग्जाम्पल एनालॉजी एक देते हैं प्रभुपाद जी कई बार, है ना। सो वो लिख सकते हैं आप इसमें। एप्लीकेशन में आई विल ट्राई, अब इससे मैंने क्या मैं अप्लाई करूंगा अपने जीवन में जो मैंने पढ़ा, सो आई विल ट्राई टू डू दिस थिंग, वो होना चाहिए ओरिएंटेड टू टाइम होना चाहिए, है ना, उसमें टाइम बाउंड होना चाहिए कि एक हफ्ते में मैं ये चीज प्रयास करूंगा, है ना। तो इस तरीके से इट शुड बी प्रैक्टिकल, ठीक है, इट शुड बी टाइम बाउंड, इट शुड बी प्रैक्टिकल, है ना, इस तरीके से। एंड देन रियलाइजेशन इज कि आप ये जब पढ़े चीज तो कोई रियलाइजेशन आपका पहले से हो, राइट, तो आपने वो लिख दिया, या फिर आगे चल के आपके साथ ऐसी कुछ चीज घटना घटी, कोई रियलाइजेशन आया, उसको अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन पॉइंट आपने लिखा तो आपने उस चीज को लिखा यहाँ पे। तो दिस वे आपका पूरा जो है बनता रहेगा, मतलब आप जब फ्यूचर में लेक्चर देने जाओगे आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने भागवतम खोला उसमें साइड में आपके नोट्स हैं, बस आपने ये चीज बताया अपने जीवन से, आपने बताया कि मैंने ये चीज अप्लाई करा, ऐसे ऐसे हुआ था, और इस तरीके से, राइट। सो इट विल वेरी इजी फॉर यू टू गिव लेक्चर्स इवन, राइट। और ये आपकी एक तरह से सारी क्या कहेंगे, हाँ, संपत्ति है, संपत्ति, है ना। रियलाइजेशन जो हमारी लाइफ में आए हैं वो सारी संपत्ति है हमारे लिए, है ना। सो दिस वे, तो आई मेक नोट्स दिस वे, राइट। सो इस तरीके से हाईलाइट करके, है ना। और फिर आप जो है वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, लाइक यू कैन रीड भगवद गीता सुबोधनी, सुबोधनीज आर देयर सो दे कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो इस तरीके से ये एक पार्ट हो गया, ओके, रीडिंग से रिलेटेड। तो इससे क्या होगा, प्रभुपाद बोलते हैं राइटिंग इज मेमोरी। सो जितना आप नोट्स बनाओगे लिखोगे, तो स्टार्टिंग में तो मैं नोटबुक लिख लेता था, नोटबुक में बनाता था सारे नोट्स, और अब जो है लैपटॉप पे टाइप करते करते कि थोड़ा फास्ट और स्टोर्ड रहता है एक ही जगह पे, नोटबुक्स गायब हो जाती हैं इधर उधर, सो एक जगह रहता है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो वन नोट पे। सो जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा मेमोरी में आपके जाएगा, सो राइट, वो फिर चीजें, और फिर क्या है, आप उसको बताओ, जैसे आज आपने कुछ पढ़ा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, डिवोटीज के साथ शेयर करो, या कि जो फैसिलिटेशन उनके साथ शेयर करो, तो जितना आप बोलोगे लिखोगे बताओगे उतना याद रहेगा फिर धीरे धीरे, है ना। सो एक ये चीज है।
ओके हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा था इसमें से, तो रीडिंग हियरिंग के लिए प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दिए हैं। 3rd कैंटो 27 चैप्टर का 21st वर्स है। सो इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वन इज, हाँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ श्रुति, वन इज spoken by the Lord and the other is spoken about the Lord and his devotees. Bhagavad Gita is the former and Srimad Bhagavatam is the latter. One must hear these scriptures repeatedly from reliable sources in order to become fixed in serious devotional service. है ना? तो एक तो है कि इनको पढ़ना है, सुनना है रिपीटेडली, रिलायबल सोर्स, ऐसी नहीं कि कोई भी भगवद गीता या कोई भी भागवतम या कोई भी बुक उठा लिया, है ना, तो रिलायबल सोर्स होना चाहिए और रिपीटेडली करना है। तो उससे क्या होगा, इन ऑर्डर टू बिकम फिक्स्ड इन सीरियस डिवोशन सर्विस। कई बार भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी मैं निष्ठा पे कैसे पहुंचूंगा, प्रभु जी प्रेम कब आएगा, भाव कब आएगा, है ना, तो इसको रिपीटेडली करना है। और फिर प्रभुपाद बता रहे बाय कंटिन्यूअस रेगुलर हियरिंग द इफेक्ट्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ लस्ट एंड ग्रीड टू एंजॉय और लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर डिमिनिश। तो कंडीशन सोल का प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, हम क्यों संसार में, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय द मटेरियल नेचर, वी वांट टू बिकम प्रॉपर राइटर ऑफ दिस, है ना। तो वही जो भक्त होता है, प्योर डिवोटी होता है, उसका क्या होता है, भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, बस मैं और अच्छे से भगवान की क्या सेवा करूं। तो हमारी जो चेतना है उसको ट्रांसफॉर्म करते करते हमें कहाँ जाना है, प्योर डिवोटी की चेतना क्या है, टू ऑलवेज सर्व कृष्णा, एवरीथिंग फॉर कृष्णा, नथिंग फॉर माई सेल्फ। तो वो कैसे होगा, बार 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 रिपीटेडली सुनने से, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग करने से रिपीटेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं कि ये तुरंत ही हो जाए, एक दिन में हो जाएगा। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम हमें करना है। ये कपिल देव मुनि बता रहे हैं माता देवहूति को। ओके, सो वी आर having only 5 to 10 minutes now. Reading small books or not. So this we have a Prabhupada book list कि किस तरीके से किस सीक्वेंस में Prabhupada books पढ़नी है. So this particularly you can, like, practically if you have told to read Srimad Bhagavatam, so it's fine, you can side by side read small books. Otherwise you can consult with your local authority or facilitator ki what is best. It's not wrong, I think, but for you what is best, like Bhagavatam should be done actually later on, but anyway, if you're reading that, so you can consult with your facilitator what is best for you. मन नहीं लगता मन तो ऐसा ही है, वो तो लगता ही नहीं, उसको लगाना पड़ता है। सो यही है इसके लिए तो कि आप एक स्टडी सर्कल, एक सर्कल हो आपके जो कि डिवोटीज, जो जैसे बताया ना टॉपर होता है क्लास का टॉपर, उसी तरीके से एक डिवोटी ढूंढिए जिसके बहुत अच्छे नोट्स होंगे, जिसके बहुत अच्छा बैठ के जो है, तो क्या इसमें ये भी करते हैं, लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिवोटी फ्रेंड दे देते हैं, SPS में आते हुए उनको एक डिवोटी फ्रेंड बना देते हैं उनका। तो हर एक डिवोटी का यहाँ पे एक फ्रेंड होना चाहिए, जो चाहे वो उनके आसपास हो, साथ रहता हो, या उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, या साधना अच्छी हो, इस तरह से समा उनके फ्रेंड होने चाहिए एक। तो हम क्या करते हैं, किताब लिया तो एक डिवोटी एक पन्ना पढ़ेगा, फिर दूसरा डिवोटी दूसरा पन्ना पढ़ेगा। तो इस तरीके से वो वैसे भी हमें जो है भक्तों के संग में ही साधना करनी चाहिए, रीडिंग हियरिंग करना चाहिए। तो इस तरीके बेस पे भी हम सुबह उठते हैं तो साथ में ही हियरिंग कर प्रभुपाद लेक्चर और फिर नोट्स बनाने सब शेयर कर रहे हैं, राइट। तो वैसे ही आप कर सकते हैं। अब तो जूम है, जूम पे आप बैठ जाइए एक दोस्त को लेके, है ना, और फिर अपना एक किताब पढ़ने लग जाइए साथ में, है ना। competitive environment of college is a challenge in sadhana. Okay, I'll come to that if time permits. Then so इस तरीके से आप मन को लगा सकते हैं धीरे धीरे। फिर क्या, अब देखो भगवान की कथाएं तो इतनी आप कर सकें कि भगवान राम खुद जो है अपने सिंहासन पे आके नीचे बैठ गए, और वो साथ में नहीं होते जोक मारते तो वो भगवान के पीठ पे ही मार, तो भगवान ही अपनी कथाओं से आकर्षित होते, तो नेचुरली आपका भी कुछ ना कुछ रुझान होगा। आप ढूंढो आपका नीश, है ना, आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, राम जी की कथा अच्छी लगती है कि कृष्ण कथा अच्छी लगती है, चैतन्य चरितामृत अच्छी लगती है, यू डिस्कस विद योर अथॉरिटी। पर धीरे धीरे टेस्ट डेवलप करने का प्रयास करिए। प्रभुपाद इसलिए बोले अगर आप एंथुजियास्टिक फील नहीं कर रहे हो, जस्ट एक्ट लाइक यू आर एंथुजियास्टिक, धीरे धीरे आ जाएगा। तो ट्राई, प्रयास करते रहिए और एक भक्त का हेल्प लीजिए, ठीक है। यूट्यूब हियरिंग, तो इसके लिए वही है, हमारे पास एक शेड्यूल है हियरिंग का। सो बिकॉज यूट्यूब पे अब आपको एक
वो तो ठीक है, स्टार्टिंग में सुनना हमने और फिर टच में आ गए इस्कॉन के कृष्णा कॉन्शियसनेस से। बट नाउ फॉर आर रेगुलर प्रॉपर डेवलपमेंट, जैसे बच्चे को आप बचपन से बड़ा करके लाना है तो उसको जिस उम्र में जो चीज चाहिए खुराक वही देना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ा कि उसको चाउमीन नूडल खिला रहे हैं ऐसे थोड़ा बड़ा होगा वो, है कि नहीं। तो उसको जो खुराक चाहिए वो देना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं प्रभु जी मैं तो ना कुछ हाई रस ले लूंगा, कुछ ना मतलब हायर लीला सुन लूंगा तो मेरा एडवांसमेंट हो जाएगा, नहीं उल्टा बताते कि रासलीला सुनने से लस्ट खत्म हो जाता है, पर जिसके अंदर लस्ट है उसका बढ़ जाता है तो इसलिए हम एडवांस डिवोटी नहीं है, जो जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल का हमें खुराक लेना पड़ेगा। तो श्योरली आपके पास भी एक रीडिंग शेड्यूल होगा, सो यू कैन कांटेक्ट योर लोकल अथॉरिटी, वो आपको जो है दे देंगे, तो वो सीक्वेंस में सुनिए उस लेक्चर्स को, है ना। तो उस तरीके से फिर आपका ओवरऑल ग्रोथ होगा, साधना में कैसे करना है, डिवोटी रिलेशन में कैसे करना है, सेवा में कैसे करना है, तो उसका पूरा एक शेड्यूल आपको श्योरली प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर आप उसको सुनिए, है ना, प्रॉपर्ली, और उसको रिपोर्ट करिए, नोट्स बना के रिपोर्ट करिए, योर फैसिलिटेटर विल बी वेरी हैप्पी विद यू देन। ओके। तो चैंटिंग करते हुए लीला वाला बात जो आता है उसमें जो है प्रभुपाद बोलते हैं कि जस्ट फोकस ऑन हियरिंग, है ना। सो हमारे को फोकस पूरा करना है हियरिंग। यू कैन रीड सम बुक ऑल्सो इफ यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम योर अथॉरिटी, यू कैन रीड लाइक लिविंग नेम, दैट इज बाय हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज। उसमें पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारी एक्टिविटीज दिया है, मतलब चैंटिंग के टाइम पे क्या करना है, मेडिटेटिंग ऑन द होली नेम। और यू कैन डू प्रेयर्स, है ना, प्रेयर्स, है ना। आप प्रे कर सकते हो हरिदास ठाकुर के से, या यू कैन जस्ट प्रे टू द होली नेम, ओ राधे ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर प्योर डिवोशन सर्विस, इस तरीके से, राइट। दैट इज द फोकस वाइल चैंटिंग, राइट। सो गुण रूप लीला आएगा, पहले नाम में हमें जो है अपने आप को फोकस करना है ना। सो दैट इज व्हाट प्रभुपाद हैज स्टेटस, जस्ट हियर द होली नेम, है ना। सो अगर कोई और थॉट आ भी रहा है ना, related to Krishna consciousness, it is fine, but best is to hear the holy name. What you are speaking, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, so टेंशन नहीं लेना प्रभु जी, लीला स्मरण क्यों नहीं होगा होगा एक समय पे होगा, टेंशन मत करिए, भगवान जब कृपा करेंगे होगा, बट जबरदस्ती नहीं है ना। फोकस इज ऑन चैंटिंग, सिंगिंग नॉट स्ट्रेस। तो थोड़ा हल्का जप करिए, पानी पीते रहिए, है ना, पानी पीते रहिए। एक जप कर लिया, एक माला कर लिया, पानी पी लीजिए, एक घूंट पानी पी लीजिए, थोड़ा गुनगुना पानी है, सुबह के टाइम में गर्म पानी पीने से तो गैस निकल जाता है, हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए तो उससे, और शहद लीजिए, शहद और काली मिर्च लीजिए तो आपका गला मिठास रहेगा। और ठीक है, माइंड डिस्टर्ब विद प्रीचिंग क्लास तो एक बार ये क्वेश्चन एक सीनियर डिवोटी से पूछा तो प्रभु जी बोले अच्छी बात है, कम से कम प्रचार के बारे में तो सोच रहा है so it is okay, but still you can write down previous night whatever, एक टू डू जपा होता है, जैसे हिज होलीनेस भक्ति बृहत भागवत स्वामी महाराज जी लेते हैं, तो एक टू डू जपा होता है, अलग अलग तरीके के जप करते हैं, वॉकिंग जपा, है ना। सो अलग अलग, तो इसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि पहले ही हम जो है टू डू लिस्ट अपना बना लें रात को, पिछली रात को, और फिर सुबह अपना अच्छे से बिना किसी लोड के जो है जप करें, है ना। सो आई थिंक दैट्स इट विद द साधना एस्पेक्ट। फिर आता है 3 दिन मन लगता है मंदिर में, फिर नहीं लगता, तो अच्छा है आप जो है मंदिर में शिफ्ट हो जाओ बेस में शिफ्ट हो जाओ, है ना, फिर मन ही मन लगता रहेगा भक्तों के साथ, सिंपल सोल्यूशन, क्या टेंशन है प्रभु जी भी खुश हो जाएंगे आपके एक ड्यूटी और बढ़ गया मंदिर में अच्छा है, राइट। तो मन का तो ऐसे ही है प्रभु, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करिए, रेगुलर रात का टाइम है 8:30 से 9:30, अपने मतलब कोई डिवोटी के साथ बुक रीडिंग करिए, कृष्णा बुक पढ़िए, है ना, एक डिवोटी टच, मतलब किसी ना किसी तरीके से हर रोज भक्तों से मिलने का, बात करने का, साधना करने का मौका ढूंढिए, है ना। सो तभी हम भक्तों के संग में रहते हुए बचे रहेंगे, मन लगता रहेगा, है ना। और फिर है एक्सट्रीम लाइफ बैलेंस वाली चीज, तो ये तो रहेगा प्रभु हमेशा, कि कभी कोई चीज घर में इंपॉर्टेंट हो गया, कभी ऑफिस में कभी कुछ आ गया, कभी साधना कुछ प्रीचिंग प्रोग्राम आ गया, तो ये तो जगल चलता रहेगा। इसलिए आपको फैसिलिटेटर अलॉट करें जो आपको पर्सनली डील कर सकें, है ना। बट उसमें यही है कि टेंशन नहीं लेना, भगवान पे आश्रित रहना है और करते जाना है, करते जाना है,
है ना। कभी कभी कुछ चीज़ों को पीछे करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आगे करना पड़ेगा, तो ये एक आर्ट है। तो ये आर्ट अपने अपने सीनियर से सीखिए आप कि किस तरीके से जो है वो कर पाए, है ना। सो आई थिंक आई एम ऑन टाइम। इट्स 9 o'clock, so we have covered like all the things which we have got। और जो ये competitive environment वाला है, तो हाँ वो टेंशन रहती है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऑफिस में सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ना पीछे रह जाऊं। प्रभु, जस्ट डिपेंड ऑन कृष्णा। कृष्णा विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग। डिवोटी एसोसिएशन से बेस्ट क्या है ना। और रोटी कपड़ा मकान के लिए तो भगवान दे ही देंगे, इतना टेंशन मत लो प्रभु, है ना। सो ये हमारा इन्वायरमेंट देखते हैं ना, प्रोपागेंडा दिखता है ना सब, यार ये हो रहा है वो हो रहा है, तो टेंशन बनता है। बट डोंट वरी, यू जस्ट डिपेंड ऑन कृष्णा, कृष्णा विल गिव यू बेटर देन दैट। वो जो उनको दे रहे हैं ना, माया माया दे रही है, माया, बट व्हाट कृष्णा विल गिव यू, दैट विल बी बेस्ट। थोड़ा टेम्परेरी लगेगा यार, ये सब क्या चल रहा है, भगवान कुछ कर ही नहीं रहे मेरे साथ, मैं इतनी माला करता हूँ, 32 माला भी करता हूँ, एकादशी व्रत भी रखता हूँ, बट कुछ कर ही नहीं रहे भगवान मेरा। तो प्रभु बचे रहोगे, अगर जितना अंदर घुसोगे उतना फिर वो माया खाती जाएगी। फिर क्या है, बॉस आपको खींचेगा, आईएएस ऑफिसर लग गए या जो भी लग गया, आगे चल के फिर उस चीज में घुस जाओगे, फिर कैसे निकलोगे, साधना कैसे होगी। गोलोक जाना है, गोल इज गोलोक का, लाइफ गोल इज गोलोक का, है कि नहीं। सो इसलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना। सो यू डिस्कस विद योर फैसिलिटेटर व्हाट इज बेस्ट, बट डोंट वरी, डिपेंड ऑन कृष्णा, राइट। सिंग मोर एंड मोर वैष्णव सॉन्ग्स, है ना। वैष्णव सॉन्ग्स आर टोटल कंडेंस वर्जन ऑफ वेदास, है ना, ऑल द नॉलेज। सो मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट स्टिल जो मैंने श्रवण करा है, आई जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट। थैंक्स अ लॉट प्रभु, थैंक्स अ लॉट अमरीश, गॉड प्रभु। या ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया साधना के बारे में। चलिए इस प्रकार के ही चैलेंजेस है जो मतलब स्टूडेंट्स आप फेस कर रहे थे। तो आज मतलब आशा करते हैं कि आज के इस सेशन से बहुत कुछ हेल्प मिली है बच्चों को, और काफी मतलब प्रयास करेंगे और अच्छे से साधना करने का। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो। You pray for all of us so that we can become sincere in Krishna consciousness and teaching also. Thank you very much. So we will give you thanks by chanting one time Hare Krishna for Guruji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Gopinath Ki Jai. All glories to Srila Prabhupada, Jagadu Srila Prabhupada ki jai. Vansa Krishna. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Thanks. Hare Krishna.